Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you're doing good and be safe. So this is a long time that I'm doing a video sitting like this, but it's a very important topic and I want to convey to all of you that even if you have studied physics, chemistry and bio many times, but revision is the key to success. Like these 1 to 2 months before NEET can either make you or break you. Let me tell you that my previous drop was ruined because of this only, because my last 2 months were wasted. Yeah, I want you to focus that revision is very important now and you have to do it nicely. So before giving you a perfect timetable, a timetable is perfect. I think that's the wrong thing that I said, a perfect timetable. Thing is ki the timetable that I am giving, it's not necessary that it will work on you, but you can surely take out some pointers that will help you make your own timetable. So please keep that in mind. And there are a few more things that I want to tell you, that your timetable should not be dependent on the amount of the time you give. Like ये नहीं है कि you have made a timetable that you have to study for 12 hours. Instead, focus on the quantity of work you do. So that depends on individual to individual. So you should make your timetable quantity wise, not time wise. Second of all, make a realistic timetable. Like I said, it depends on individual to individual. First, find out the amount of work you can do in one day of all the three subjects together. And just remember that it's not necessary कि तुम तीनों subject को हर दिन पढ़ो, हर दिन revise करो. Like according to me, मेरे साथ क्या होता था कि I did bio, inorganic chemistry and organic chemistry every day in revision, but it was not possible for me to revise physical chemistry and physics the same day. So what I did was कि मैं bio, inorganic and organic every day revise करती थी, and alternate day मैं एक दिन physics revise करती थी, एक दिन chemistry revise करती थी, physical chemistry. So that's what I used to do. So please know what you can do. बहुत वो होने का ज़रूरत नहीं है कि भाई ये इंसान इतना कर रहा है तो मैं भी इतना करूँ. That's totally not necessary, because you know what's best for you. Last but not the least, please be dedicated and don't procrastinate, because it's just these 2 months that are gonna make your life, or either they'll break you if you don't do it nicely. So it's just a matter of 2 months. Give yourself, totally devote yourselves to studies, because after these 2 months you will feel like you have achieved, like it will feel heaven. Well, yeah, NEET के बाद चीज़ें थोड़ी सी different होती हैं, and trust me, it's amazing to experience that. So please look forward to those days. तुमको वो दिन experience करने हैं, इसीलिए पढ़ लो. अगर तुमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो तो then just think about your parents and think about yourself, that you need to have a good future, a good career. You need to do that. So let's first talk about the most scoring subject in NEET, that is biology. Now trust me on this, that you should stretch maximum marks in bio and chemistry as much as you can. कि अगर तुम्हारा physics थोड़ा सा खराब भी होता है ना, तो तुम्हारा marks इतना कम नहीं होगा. Trust me, because this time in NEET I scored 360 in biology and I guessed 166 in chemistry and 142 around in physics. So मेरा physics में score comparatively थोड़ा कम था. Like if I could have scored 160 in physics, मेरा score और अच्छा होता, but थोड़ा सा कम हो गया. But मेरा chemistry and bio में इतना अच्छा था, इसलिए मेरा score उतना भी कम नहीं हुआ. I could score 668. So please focus कि bio and chem are the very scoring subjects and you need to score in that. Now biology के revision की अगर बात करें, तो there are two types of revision, as I've always said. किसी को केवल रिवाइज करके बार बार पढ़ के चीज़ अच्छे से याद हो जाती हैं, like me. मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस की बायोलॉजी में कम ज़रूरत पड़ती थी. I could just read the chapters n number of times and I just remembered all the points. Like मैं टेस्ट देती थी, ये टेस्ट देके तुमको पता चलेगा कि तुमको कौन सा मेथड सूट कर रहा है. Like अगर तुम केवल रिवाइज करके फिर भी तुम टेस्ट में अपने 360 आउट ऑफ 360 ला रहे हो टोटली NCERT बेस्ड टेस्ट में, देन वेल एंड गुड, तुमको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है. बट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट एंड तुम क्वेश्चन कर रहे हो, उसके बाद तुम टेस्ट दे रहे हो एंड यू फील कि मेरा और अच्छा जा रहा है, दैट मीन्स यू नीड टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस. सो बायो में मेरा रिविजन कैसा होता था. नाउ आई यूज टू गेट अप एट 7, okay, 7 in the morning, and I used to start my study from 8 a.m. Now from 8 to 10 my target was to do one chapter in half an hour through Pomodoro, because Pomodoro suited me a lot.
सब कुछ जोन आउट हो जाता था एंड आई कुड जस्ट फोकस ऑन द लाइन्स एंड द फैक्ट्स दैट वर गिवन इन माई नोट्स. मैं 4 चैप्टर्स एवरी डे करती थी बायोलॉजी के, हाफ आवर. दैट मीन्स फॉर 2 hours आई यूज टू डू 4 चैप्टर्स. एंड जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता था मैं NCERT में उसको ऊपर क्रॉस कर देती थी, एक लाइन क्रॉस कर देती थी. सो आई कुड कीप काउंट ऑफ हाउ मेनी टाइम आई हैव डन दैट पर्टिकुलर चैप्टर. एंड माई टारगेट वॉज टू रिवाइज ईच एंड एवरी चैप्टर फॉर 25 times. तो मेरा ऑलमोस्ट 20 times हर चैप्टर में कट चुकी थी वो लाइन्स. सो या दैट वॉज माई वे ऑफ डूइंग बायोलॉजी. नाउ कभी कभी क्या होता था, अगर छोटे चैप्टर हैं तो कभी कभी 2 घंटे में मेरे 5 चैप्टर हो जाते थे. नाउ इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको क्वेश्चंस करके समझ आता है, देन प्लीज़ थिंक अबाउट डूइंग questions from a question bank or book that has given totally NCERT based questions. Please don't do this mistake of making questions from some high level modules जो NCERT से बाहर के questions दे देते हैं. So if you ask me to suggest a question bank that is totally NCERT based, then I would like to suggest Memoneat, which I have already suggested before in my video. That Memoneat has taken almost more than 20,000 questions from NCERT and only NCERT. They have included all the diagrams and summary. Now you would know कि summary में कुछ कुछ ऐसी lines हैं जो text में नहीं दी हैं. They are the same thing, मतलब concept same है, but उसको different way में लिख दिया है summary में कि तुम पहचान नहीं पाओगे. Like I can't give you example right now, but अगर तुम summary पढ़ रहे हो NCERT की, then you would have realized कि इसमें कुछ points extra दिए हैं and you have got questions from that, तो वो तुम्हारे notice में आएगा ही आएगा. Now the main problem with NCERT is कि वो इतने textbook form में दी हुई है, it's hard to revise from it and 80% of information तुम भूल ही जाओगे उसको याद करके. But on the day of exam you need to retain each and every line of NCERT. You can take help from my notes जिसमें सब flow charts and everything, सब चीज़ flow charts और tables के form में मैंने कर दिया है. But if you can get a question from each and every line of NCERT, wouldn't that be amazing? Now Memoneat has done that and I think you should check it out. The most unique thing about Memoneat is कि they have a feature of spaced repetition. Now ऐसा होता है कि लोग कहते हैं ना कि बार बार रिवाइज करो, बट इट्स जस्ट दैट कि तुम वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते हो कि तुम एक दिन उठाओ फिर 2 दिन बाद तुम दोबारा उस चीज़ को उठाओ. बट व्हाट इफ कि तुम्हारे पास बार बार नोटिफिकेशन आ रही है उन क्वेश्चंस के लिए. नाउ Memoneat हैज़ डन दैट कि अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो ऑन फर्स्ट डे देन दे रिंग अ नोटिफिकेशन ऑन योर फोन, on 3rd day, then 5th day, then 8th day and so on, like so you can revise it. and तुम उसको बार बार गलत करते जाओगे, वो तब तक long term memory में नहीं आगे बढ़ेगा. It will stay there until you get it right a couple of times. So all the questions that you do, all the questions, they'll first go into temporary memory and they'll go into long term memory only when you have done them right a couple of times. ठीक है, no matter from which topic they are. And one amazing thing, since Memoneat has all the questions from NCERT and NEET is NCERT based, so 90% of questions in NEET this time actually came from Memoneat. Now they have released a proof on their YouTube channel, so you can go and check that out. And what's new is that before Memoneat was only for biology, but now they have included chemistry and physics too. Now for physics, they have done something really unique. Now they are targeting physics with 4 different aspects. The first one is that they have provided video lectures for only the important concepts. कभी कभी क्या होता है, आपने पूरा चैप्टर तो पढ़ा होता है, but you need a fast revision for those few important concepts. Now they have video lectures for those few important concepts. Second, they have concept building questions. Now the concept building questions will help you reinforce those concepts in your mind and they do it very actively. Now ताकि आप ना हर एक क्वेश्चन को उस फॉर्म में परसीव कर सको एंड यू कैन सॉल्व इट वेरी नाइसली अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो. Third is they have included all the PYQs, so you can get all the PYQs at one place and they have detailed video solution for each PYQ and that is top notch. Fourth is very unique. Now this is actually a game changer. Since NEET में जो questions आते हैं वो कहीं ना कहीं previous year questions पे based होते हैं. So what they have done कि previous year questions के same format पे, same working solution पे उन्होंने दूसरा क्वेश्चन फ्रेम किया है.
सो वो सेम क्वेश्चन नहीं है PYQ वाला, इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन बट ऑन द सेम कंसेप्ट ऑफ दैट PYQ. नाउ तुमको उसका आंसर पहले से नहीं पता रहेगा बिकॉज PYQ में आंसर रट जाते हैं, बट यू वुड नाउ हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट कि उस क्वेश्चन पे क्या लगा था, और कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो तुम वो वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे. सो लाइक इजंट दैट वेरी यूनिक कि तुमको ऐसे फॉर्मेट में PYQs प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है. सो दीज वर बेसिकली रिविजन टिप्स फॉर बायोलॉजी. और अगर इसको आपको और डिटेल में जानना है कि मैंने और कौन कौन से टूल्स से बायोलॉजी रिवाइज की थी, आई थिंक यू शुड वॉच दिस वीडियो राइट हियर. These are 5 ways that you can remember biology more effectively. So yeah, you can go and check that out for the revision algorithm. Memoneat has plans for 2 years NEET preparation, that is for NEET 2023, and you can use my code TANI300 off to get a 300 rupees off on their plans. And if you have a problem with online payment method, then you can Gmail them on this Gmail, and that I'll write in the description box too. They'll help you with the bank transfer. So yeah, please check this app out and I would really suggest you guys to use it. Now let's go forward with chemistry. Now I'll take chemistry in 3 parts, that is organic, inorganic and physical. Let's go with organic first. Well, organic is totally conceptual. Like अगर आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो तब तक नहीं सॉल्व होंगे जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा. जब आप किसी लेक्चर से ये सब पढ़ रहे होते हो ना, दे टेल यू दीज थिंग्स एट द सेम प्लेस, तो तुम्हारे पास वो कॉन्सेप्ट एक जगह पे रहता है एंड तुमको अच्छे से याद होता है, और वो लोग ट्रिक्स भी देते हैं कि तुमको याद रहे. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच योर लेक्चर्स इन ऑर्गेनिक फ्रॉम बिफोर. दिस वॉज फ्रॉम बिफोर. एंड ऑर्गेनिक में एवरी डे कैसे रिवाइज करती थी, तो 8 to 10 मेरा बायोलॉजी हो जाता था, 4 चैप्टर्स. नाउ फ्रॉम 10 to 11 मैक्स, 10 to 11 आई यूज टू रिवाइज माई लेक्चर नोट्स and few questions, especially the in-text questions and the exercise questions given in NCERT. कभी कभी उससे direct question आ जाता है and you can save your time on that. So yeah, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनिक में इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट, बिकॉज सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बट यू शुड प्रैक्टिस दोज इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन फॉर श्योर, बिकॉज उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. So from 10 to 11 I used to do 1 chapter for organic every day, and those chapters of organic which are रट्टा मारने वाले, like chemistry in everyday life, environmental chemistry and things like that. ऐसे 4 चैप्टर हैं, एक 11th में एंड 3 12th में, इफ आई एम राइट. सो ये 4 चैप्टर जो हैं इनको आप इंक्लूड कर लो इनऑर्गेनिक के रिविजन के साथ, बिकॉज टोटली फैक्चुअल बेस्ड हैं जस्ट लाइक इनऑर्गेनिक. आई एग्री इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट हैं, बट एट द एंड उसको रट्टा मारना पड़ेगा आपको, बिलीव इट और नॉट. सो या तो आप उसको उसमें ऐड कर लो, तो मैं उसको उसमें ऐड करके करती थी, विच आई विल टेल यू इन इनऑर्गेनिक रिविजन. So now let's come to inorganic revision. Till 11 AM I used to do organic, and from 11 to 12:30 almost I used to do inorganic. Now inorganic में एक group I used to do 1 group every day no matter what. मैंने जो नोट्स बनाए थे अपने NCERT थ्रेड नोट्स, वो अलग अलग बनाए थे हर ग्रुप के लिए, लाइक ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14. लाइक आई हैव मेड डिफरेंट ग्रुप्स, नॉट चैप्टर्स. लाइक P ब्लॉक में 4 ग्रुप है, तो मैंने P ब्लॉक के पूरे नोट्स नहीं बनाए, मैंने हर ग्रुप के अलग अलग बनाए. सो आई यूज टू रिवाइज 1 ग्रुप एवरी डे ऑफ इनऑर्गेनिक, एवरी डे. एंड इररिस्पेक्टिव, और मैं ये भी करती थी ऑल्टरनेट डे पे, क्योंकि इतना काम हो रहा है. सो ग्रुप तो हर दिन करना ही करना है. दैट मीन्स तुमको बायोलॉजी के 4 चैप्टर, ऑर्गेनिक का 1 चैप्टर एंड 1 ग्रुप. दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू एवरी डे. और ये तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारी स्पीड मेंटेन रहेगी रिविजन की, जो वो तभी मेंटेन रहेगी जब तुम बार बार ये चीज़ें रिवाइज करोगे. सो तो यस, तो फिर एक ग्रुप हर दिन रिवाइज करती थी, और ऑल्टरनेट डे पे एक बड़ा चैप्टर उठाती थी, लाइक हाइड्रोजन, मेटलर्जी एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लेक्चर देखना मत भूलना, इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर. उसका तुम लेक्चर देखोगे तभी तुमको उसका कॉन्सेप्ट समझ आएगा, लिगेंड थ्योरी एंड एवरीथिंग. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच लेक्चर्स ऑफ इट. कमिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री, आई वुड लाइक टू टेल यू कि जेईई मेंस जैसा पेपर नीट में नहीं आता कि वो तुमको बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन दे फिजिकल केमिस्ट्री में. You need to focus on the theoretical part of physical chemistry, like that electrochemical series. ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं theoretical part में, कि ऊपर जाते हुए क्या बढ़ेगा, नीचे जाते हुए क्या बढ़ेगा, ये सब चीज़ for sure ध्यान रखना, इनको अलग पेज पे लिख लो प्लीज़. theoretical part पे ध्यान देना. नेक्स्ट इज़ दैट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस. लेट मी टेल यू, वो बहुत सिंपल आते हैं, बेसिकली बस फॉर्मूला बेस पे आते हैं. एंड इफ़ यू हैव डन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड दोज इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो तुम्हारी आंखों से हटा हुआ रहेगा. इफ़ यू वुड नो, इस बार भी केमिस्ट्री में एग्जाम्पल से 2-3 क्वेश्चन आए थे. लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक क्वेश्चन आया था जो मैं गलत करके आई थी.
इट वॉज अ बेसिक एस्टिमेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट मैं वो गलत करके आई थी. बट लेकिन अगर मैंने उसको एग्जाम्पल में देखा हुआ रहता शायद, तो वो मेरा सही होता और आज मेरे को बेटर नंबर आए होते केमिस्ट्री में. नाउ द मोस्ट ड्रेडेड सब्जेक्ट इज दैट फिजिक्स. देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम फिजिक्स. यू हैव टू वॉच ऑल द लेक्चर्स. उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है. I didn't give notes for physics because many students told me कि भाई प्लीज़ मुझे फिजिक्स के नोट्स आप प्रोवाइड करवा दीजिए. बट द थिंग इज़ कि फिजिक्स तुमको तब तक नहीं समझ आएगी जब तक तुम बैठ के उसके खुद नोट्स नहीं बनाओगे लेक्चर देख के. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई हैड अ वेरी यूनिक वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस. लाइक मेरे को सेम टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मोनोटनी लगती थी. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि फर्स्ट वॉल्यूम फिजिक्स की, it has got almost 6 to 7 chapters. Now मैं क्या करती 4 to 5 days I'll revise these 6 to 7 chapters, and from each chapter I'll do 30 questions. That means 6 into 30, that is 180 questions every day. अब लगेगा कि ओ गॉड 180 क्वेश्चंस एवरी डे बनाना है 2 महीने 3 महीने तक के लिए. इट वुड बी सच अ डॉन्टिंग टास्क. ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग एंड बिफोर लाइक आफ्टर डूइंग बायो, जब आप थक जाते हो, यू कैन डू 30 क्वेश्चन फ्रॉम 10 to 10:30 एज अ माइंड रिफ्रेशिंग गेम और समथिंग. लाइक ट्रस्ट मी, ये बहुत रिफ्रेश करता था मेरे को जब मेरे को बायो पढ़ के थकान हो जाता था. और इफ़ यू आर ओके विद इट देन जब 12:30 पे तुम्हारा इनऑर्गेनिक एंड एवरीथिंग सब खत्म हुआ, टेक अ 1 to 2 hour ब्रेक आफ्टर दैट प्लीज़. उसके बाद लगातार मत पढ़ो. देन take a power nap of 20 to 30 minutes and start your studies from 3 at least. So yeah, 3, and then तुम slot wise में करो. 30 questions half an hour में, फिर तुम 15 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर 30 क्वेश्चंस हाफ एन आवर में, फिर तुम 15 मिनट्स का ब्रेक लो. तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे 180 क्वेश्चंस कब हो गए. एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि तुमने एक दिन में 6 चैप्टर्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स 30 क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज किए. और ये तुम 4-5 दिन लगातार करोगे, यू विल फील कि ओके मेरे ये 4 to 5 डेज में ये 6 to 7 चैप्टर्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो गए सारे क्वेश्चन के साथ, और मुझे इतना टफ भी नहीं लगा इन सबको करना. आई गेस इट विल अकाउंट टू 700 क्वेश्चंस इन 4 to 5 days. तो जस्ट सी द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू डूइंग, तुमको कितना बेनिफिट हो रहा है, और तुमको दिमाग को तुमने इस तरीके से ट्रिक कर दिया 30 क्वेश्चंस करके कि ज़्यादा काम भी नहीं है. मेरे को एक चैप्टर में बस 30 क्वेश्चंस करने हैं, कितना ही बड़ा बात है. लाइक योर माइंड इज ट्रिक्ड इन टू दैट गेम. सो प्लीज़ अपने माइंड को, जैसे दिल को कहते हैं ना ऑल इज़ वेल, अपने दिमाग को थोड़ा सा बुद्धू बना के चलो कि काम कम है. ट्रस्ट मी दिस थिंग वर्क्स अ लॉट. एज आई सेड कि मैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को ऑल्टरनेट डे पे करती थी. तो व्हेन आई कम टू फिजिकल केमिस्ट्री, मैं फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी जस्ट लाइक आई डिड इन फिजिक्स, एंड ऑल्टरनेट डे करती थी. दैट वाज माय वे ऑफ रिवाइजिंग थिंग्स. आई होप कि तुमको इससे थोड़े बहुत पॉइंटर्स मिले ताकि तुम अपना एक टाइम टेबल बना पाओ. और इफ़ माई टाइम टेबल सूट्स यू देन वेल एंड गुड, यू कैन गो फॉरवर्ड विद इट. आई विल बी पुटिंग a PDF of this timetable on my Telegram channel, so you can check it out. And I wish you a lot of luck in these 2 months, क्योंकि these 2 months are very critical. तुम्हारा मेंटल स्टेट थोड़ा सा अजीब रहता है. इस 2 महीने में बहुत टेंशन होती है, ओवर थिंकिंग होती है, बट ट्रस्ट मी ओवर थिंकिंग का कोई सोल्यूशन नहीं है, वो कम होगी नहीं, एंड इट विल नॉट हेल्प यू इन एनी वे. सो करो ओवर थिंकिंग, बट एक लिमिट में करो, उसको अपने पर हावी मत होने दो. Yes, and keep working. I would see you guys in the next video. Till then, be safe, be happy, and please be mentally sane. Give time to yourself, to your mental stability. मतलब इतना भी कोई चीज़ को अपने पर हावी मत होने दो कि वो तुम्हारी mental stability छीन ले. So yeah, please focus on that. And till then, lots of luck. Bye.